A very warm welcome to all our audience. Thanks for tuning in today. We've got a very special session lined up for you. As we know, of course, given that we are in the last quarter of the current financial year 2022-23, that is the January, February, March period, a lot of you may be aware that this is popularly known as the tax saving planning and investment season. And that's exactly what we're going to be discussing today. And for that, we have the perfect guest for the occasion. I am joined today by CA Vartika Kedia, who is the co-founder of Tax to Win, which is one of India's best e-filing tax planning platforms and websites, along with the option of personalized CA assistance and a tax planning optimizer tool. So, of course, go and have a look at Tax to Win. But with that said, of course, time to get it started. Hi, Vartika. Thanks so much for your time today. Hi Shivani, thank you for having me here. Great, Vartika. तो पहले सवाल से पहले, as the saying goes, one should never ignore the opportunity to legally save taxes, because at the end of the day, all said and done, the less taxes you pay, the greater is your disposable income and the more money you have in your pocket. So with that said, my first question to you, Vartika, majority of us, of course, leave our tax planning and investment for the absolute last minute, the last quarter, just in time to meet the required deadline. लेकिन आपका क्या कहना है, what is the best time when you should start planning and investing for your taxes and your tax saving goals? So Shivani, अभी हमने observe किया है कि most of our clients, they are coming to us now for the tax planning help. So we always suggest to our clients that the best time to start your tax planning and to do your investment is the beginning of financial year. So financial year starts from the April month and it ends in the March month. So technically we are sitting in the last quarter and we are already late for our tax planning, but nevertheless we still have some time in hand. So April से tax planning करने के काफी फायदे होते हैं. Number one, कि आप अपना fund flow manage कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1.5 लाख इन्वेस्ट करना है एटीसी में, फॉर एग्जाम्पल आपको ELSS लेना है, तो अरेंजिंग 1,50,000 नाउ at the end of financial year becomes very difficult for an individual. Rather आप अगर साल भर प्लान करोगे तो whenever you have liquidity, कभी 10,000 डाल दो, कभी 5,000 डाल दो, कभी 20,000 डाल दो, so like that आप अपना फंड फ्लो मैनेज कर सकते हो. सेकेंडली, आपके पास बहुत टाइम रहता है कि आपको पता है ईटीसी के अंदर मोर देन 10 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो लोगों को पता भी नहीं होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिस्क प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू देयर ओन फाइनेंशियल गोल्स, वो लोग हर चीज इवेल्युएट कर सकते हैं. लास्ट मिनट पे क्या होता है, जो लास्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है वो ही इंडिविजुअल्स करते हैं उसमें इन्वेस्ट, एंड लेटर ऑन दे रिग्रेट कि हम लोग को अगर ये ऑप्शंस पता ही नहीं थे. थर्ड चीज ये है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयर को बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में बता दोगे कि आपकी टैक्स प्लानिंग क्या है, तो वो आपका टीडीएस डिडक्शन भी कम करेंगे. सो इसका इम्पैक्ट जो है अप्रैल से टैक्स प्लानिंग करने का, वो आपको हर मंथ के अंदर फील होता है जब आपका सैलरी क्रेडिट होता है, बिकॉज आपका टीडीएस डिडक्शन कम होता है उसके अंदर. सो ऑल आई रिक्वेस्ट ऑल आवर कस्टमर्स इज कि आप लोग टैक्स प्लानिंग करिए बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के अंदर. ग्रेट पॉइंट्स वर्तिका. जैसे आपने कहा कि लास्ट मिनट जल्दबाजी में मत कीजिए. पीपल टेंड टू ओवर इन्वेस्ट. डोंट ओनली इन्वेस्ट टू सेव टैक्सेस. कीप योर ओवरऑल फाइनेंशियल गोल्स इन माइंड. डोंट मेक द रॉन्ग डिसीजंस एज वेल, एंड बी इन्फॉर्म्ड. द बेस्ट टाइम ऑफ कोर्स टू स्टार्ट योर टैक्स प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स इज द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इंस्टेड ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दैट ऑल ऑफ अस वेट फॉर. तो आगे बढ़ते हैं वर्तिका. जैसे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन questions, frequently debated questions from the financial year 2021, जब से old tax regime से लेकर new tax regime announce किया गया था. There's a lot of debate around that. What are the current income tax slabs under each, which is more beneficial under what circumstances. तो उसके ऊपर अगर हम कुछ चर्चा कर सकते हैं कि under what situation should an individual opt for old versus new and vice versa. शिवानी, 2021 में हमें गवर्नमेंट ने एक और ऑप्शन दिया था इनकम टैक्स पे करने का, जिसको बोलते हैं न्यू टैक्स रिजीम. नाउ एज एन इंडिविजुअल टैक्स फाइलर आई हैव टू ऑप्शंस. ईदर आई कैन पे माय टैक्सेस अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम या फिर मैं नया टैक्स रिजीम चूज करूं.
बट द प्रॉब्लम इज द मोर द ऑप्शन द मोर द कंफ्यूजन. सो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगी कि व्हाट आर द टैक्स स्लैब्स in the old regime and what are the tax slabs in the new tax regime. So for this, I'll just show our users. So as you can see, Shivani, I have written the new tax regime on the left hand side and the old tax regime on my right hand side. अब आप देखोगे तो आपको एकदम से लगेगा यार न्यू टैक्स रिजीम के अंदर तो मेरे को टैक्स बहुत ही कम लग रहा है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, और ओल्ड में मैं देखूँ तो बस 5, 20 और 30 केवल 3 टैक्स की रेट्स ही दिख रहे हैं. तो हमारा ऑब्वियस ये होएगा कि भाई न्यू ही अच्छा है, लेट्स गो फॉर द न्यू टैक्स रिजीम. बट मैं अपने व्यूअर्स को ये समझाना चाहती हूँ कि न्यू टैक्स रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम को हम एक बार स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. सबसे पहले जैसे आप देख सकते हो यहाँ लिखा है अप टू 2.5 लाख इनकम न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी एग्जेम्पशन है और ओल्ड में भी एग्जेम्पशन है. ये सेम रहा है. 2.5 लाख से लेके ₹5 लाख तक दोनों टैक्स रेजिम्स आपको 5% टैक्स रेट बोल रहे हैं. यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो चाहे आप न्यू टैक्स रेजिम में जाएं चाहे आप ओल्ड में जाएं, आपको फर्क नहीं पड़ता इससे. बट जब आप 5 लाख टू 7.5 लाख की रेंज में आप आते हैं तो न्यू टैक्स रेजिम आपको 10% देती है और ओल्ड टैक्स रेजिम आपको 20% टैक्स में चार्ज करती है. 7.5 टू 10 लाख के अंदर न्यू टैक्स रेजिम आपको 15% देती है, ओल्ड आपको 20% देती है. अब 10 टू 12.5 लाख की अगर आप रेंज में हैं तो न्यू टैक्स रेजिम आपको 20% दे रही है और ओल्ड टैक्स रेजिम आपको 30% दे रही है. अगर आप 12.5 से लेके 15 लाख की रेंज में हैं तो न्यू टैक्स रेजिम आपको 25% देगी और आपको ओल्ड टैक्स रेजिम 30% देगी. अबव 15 लाख आएंगे तो 30% एंड 30% टैक्स रेट रहेगा आपका. अब आपको ये लगेगा कि ऑन द फेस ऑफ इट कि जब न्यू टैक्स रेजिम के अंदर स्लैब्स इतने कम हैं तो उसी में करें. बट आई वुड एडवाइज कि आप एक बार बिफोर चूजिंग योर टैक्स स्लैब आप एक बार पहले अपनी खुद की पोजीशन को कंसिडर करिए कि आपके क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं एज एन इंडिविजुअल. क्या आप ऑलरेडी कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई पीपीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कोई ईएलएसएस में कर रहे हैं, या आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है क्या, जैसे एलआईसी ले रखा हो, आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस का पेमेंट किया हो, आप कोई अलाउंसेस क्लेम कर रहे हैं क्या, जैसे एचआरए हुआ, एलटीए हुआ, फूड कूपन हुआ, ऐसे खूब सारे अलाउंसेस होते हैं. तो सबसे पहले आप देखिए कि आप कुछ एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं क्या, क्योंकि अगर आप कर रहे हैं तो आपको न्यू टैक्स रेजिम बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 70 अलाउंसेस हटा दिए हैं गवर्नमेंट ने, और जो रखे हैं वो भी ऐसे हैं कि आपको लगेगा कि उनका कोई बेनिफिट नहीं है. The only allowance that you can claim in the new tax regime is your convenience allowance, conveyance allowance. आपका कोई ट्रैवलिंग अलाउंस है, वो अलाउंस थोड़ा है, वो तो टेक्निकली रीइंबर्समेंट है कि आपने कोई ऑफिस का काम किया, उसका आपका एक्सपेंडिचर हुआ और आपने क्लेम किया. तो इसलिए जो आइडियली न्यू टैक्स रेजिम उनके लिए बेनिफिशियल है जो एक 5 टू 10 लाख की इनकम रेंज में आते हैं. सेकेंडली जो कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं, या फिर जिनको एक हायर लिक्विड इनकम चाहिए हाथ के अंदर. पर टेक्निकली हम देखें तो 10 लाख से ऊपर होते ही मोस्टली लोगों के कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर्स तो हो ही जाते हैं. अब हम बात करेंगे डिडक्शंस की. अगर हम डिडक्शंस की बात करें तो कोई भी डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा. अलाउंसेस का मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर है कि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो मैंने आपको बिगनिंग में बताई थी कि 2.5 लाख तक दोनों में एग्जेम्प्ट है, 2.5 लाख तक दोनों में एग्जेम्प्ट है. बट ओल्ड टैक्स रिजीम एक स्पेशल एग्जेम्पशन देती है सीनियर सिटीजन्स को और सुपर सीनियर सिटीजन्स को. अगर आपकी एज 60 ईयर्स या ज्यादा है तो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन ओल्ड टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए है. बट अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है, जैसे आपकी एज 80 इयर्स या ज्यादा है, तो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख होती है. जबकि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ऐसा कुछ भी बेनिफिट नहीं दिया गया है सीनियर या सुपर सीनियर सिटीजन्स को. इसके लिए हमने टैक्स टू विन में ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रखा था कस्टमर्स का, रोज हमें कॉल्स भी आते थे, तो हमने एक स्पेसिफिक कैलकुलेटर भी बनाया है जो कि कस्टमर्स को हेल्प करता है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में उनका कितना टैक्स बन रहा है और न्यू टैक्स रेजिम में उनका कितना टैक्स बन रहा है. सो बिफोर चूजिंग योर टैक्स रेजिम, बिफोर लिसनिंग टू एनीवन,
यू डू योर ओन कैलकुलेशन, अपना टैक्स कैलकुलेट करिए दोनों टैक्स स्लैब के अंदर, और फिर आप चूज करिए कि आपके लिए क्या ऑप्शन बेनिफिशियल है। Thank you, Vadika, for so beautifully, explaining that and showing us the pros and cons. Largely, new tax regime में tax rate कम होते हैं for the higher income earners to a certain extent, but जो deductions allow किए हैं वो काफी कम है, and I think that is one of the main asks of the budget as well कि government new tax regime को थोड़ा और attractive बनाए. But let's talk about what is popularly and most commonly used, Vartika, at this point in time. Most of us know about the tax saving opportunities and potential under Section 80C. So that of course is the better known one, and if you can you take the audience through that, how do they benefit the most from the tax deductions up to that 1.5 lakh permissible amount? What are the instruments and how best should they divide it across these? तो शिवानी, 80C सेक्शन है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने लिमिट दिया है ₹1,50,000 तक का, विच मीन्स अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपीज है, बट आप अगर 80C के अंदर ₹1,50,000 इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो टैक्स देना होगा वो 8,50,000 पे ही देना होगा। अब जब हमें टैक्स रिड्यूस करना है और हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो इट्स बेस्ट कि हम इन्वेस्टमेंट करते वक्त सारे ऑप्शंस को इवैल्यूएट करें और फिर हम हमारे लिए क्या सूट करता है वो ऑप्शन चूज करें। जैसे मैं आपको आज 5 मोस्ट पॉपुलर 80C के जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ, जो हमारे जनरली ऑब्जर्व किया गया है। सबसे पहला ऑप्शन जो आजकल सबसे पॉपुलर है और सबको शायद पता भी होगा वो है ELSS। ये है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये एक तरीके का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें 80% जो कॉर्पस होता है कोई भी म्यूचुअल फंड का वो इक्विटी मार्केट में होता है। अब इसका जो सबसे अच्छा पार्ट है वो है इसके रिटर्न्स, क्योंकि आप कोई भी कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं, मतलब आप ओनर बनते हैं, तो बोलते हैं ना जितना रिस्क उतना बड़ा रिटर्न। तो इसका एक यूजुअली हमने देखा है कि 10 से 15% एवरेज रिटर्न आ जाता है। और इसकी जो सबसे अच्छी बात है कि इसका लॉक इन पीरियड भी 3 साल होता है, कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 3 साल से पहले उस अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकते, जो कि जितने भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं 80C में उनमें सबसे कम है। और अगर हम टैक्सेशन की बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जो कि 1 लाख रुपए तक तो एग्जेम्प्ट है आपका। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हमने देखा है जो आजकल मार्केट में बहुत पॉपुलर भी हो रहा है, और फिस्डम के पास बहुत अच्छे ELSS ऑप्शंस हैं जिसमें हमारे सारे कस्टमर्स इन्वेस्ट करते हैं। जो दूसरे ऑप्शंस हमने देखे हैं वो है PPF, जिसको बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एक बहुत ही सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, रादर मार्केट में सबसे ज्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसके अंदर गवर्नमेंट की गारंटी होती है, विच मीन्स अगर आपने कोई भी आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, अगर आपके ऊपर कभी भी कोई अटैचमेंट आ जाता है, तो कोई भी जना आपका, इनफैक्ट कोई भी कोर्ट इंडिया का आपका PPF का पैसा अटैच नहीं कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा, सबसे सेफ है। पर इसके अंदर जो डाउन साइड है वो है कि 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है इसके अंदर। सो इट्स लाइक अ वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन फॉर एन इन्वेस्टर। अब इसकी रिटर्न्स की बात करें, इसका रिटर्न्स का जो रेट होता है ये गवर्नमेंट हर साल डिक्लेयर करती है। सो अभी करंटली 7.1% चल रहा है, पर इसका टैक्सेशन बहुत अच्छा है। जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट टैक्स सेव्ड है, आपका जो इंटरेस्ट आता है वो टैक्स सेव्ड है, आपका मेच्योरिटी पे जो पैसा आता है वो तक टैक्स एग्जेम्प्ट है। तो इसको EEE रेटेड इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है, जो बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, स्पेशली फॉर द पीपल जिनको रिस्क बिल्कुल नहीं चाहिए अपने पैसे के साथ। और जो 3 और इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मैं आपको क्विकली बताती हूँ, जिसको बोलते हैं बैंक FD। अब बैंक FD में भी लोग कंफ्यूज होते हैं। केवल जो 5 इयर्स बैंक फिक्स डिपॉजिट होती है वो ही केवल 80C में आप यूज कर सकते हो। 1, 2, 3 इयर्स की FDs में टैक्स सेविंग नहीं होती, पर इसमें रिटर्न्स बहुत कम है, 5.5% to 7.5%, 8% मैक्स इसमें रिटर्न्स होते हैं।
बट इट्स नॉट अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसका इंटरेस्ट हर साल टैक्सेबल होता है। आपको पैसा मिलेगा नहीं, बट आपको जो इंटरेस्ट अक्रू होगा वो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना है और उस पर टैक्स भी देना है। तो इफेक्टिवली आपका पैसा बहुत कम हाथ में आता है। पॉपुलर इन्वेस्टमेंट्स हैं एनपीएस और एनएससी। एनपीएस होता है जो एक टेक्निकली आप अपने रिटायरमेंट के लिए एक वॉलंटरली सेव करते रहते हैं पैसा। अब इसके रिटर्न्स जो होते हैं वो अगेन मार्केट लिंक्ड होते हैं, और टैक्सेबिलिटी पार्शियली टैक्सेबल होता है। बट ये वही है, आप 60 ईयर्स तक कंट्रीब्यूट करते रहें इसके अंदर, फिर आपको पैसा मिलेगा, तो उस टाइम पे इसका टैक्सेशन लगता है। एनएससी है, वो 5 ईयर्स का उसका लॉक इन पीरियड होता है। रिटर्न्स उसमें डिसेंट है, 7 से 8%। इसके अंदर एक अच्छी चीज ये है कि आपको जितना भी इंटरेस्ट मिलता रहता है हर साल, वो आपके ऑटोमेटिकली एटीसी की लिमिट में ऐड होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10,000 रुपए एनएससी में लगाए इस साल, अब मेरे को उस पर इंटरेस्ट मिल गया 7,000 रुपए। तो नेक्स्ट ईयर जो मैं मेरा ईटीसी में ये 10,000 ये जो मेरा इंटरेस्ट अमाउंट मिला, ये मेरी ईटीसी में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा 1.5 लाख की मेरी लिमिट में। पर सपोज मेरी लिमिट एग्जॉस्ट हो गई, तो मेरा इंटरेस्ट टैक्सेबल माना जाएगा। सो ओवरऑल मैं बात करूं, अगर आपको एक अच्छे रिटर्न्स करने हैं और टैक्स सेविंग करनी है, तो ईएलएसएस इज द बेस्ट ऑप्शन। आप अगर एक रिस्क एवर्स है, तो पीपीएफ इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बिल्कुल वर्तिका, जो जैसे आपने कहा, there are many popular investment products under section 80C itself. Among those, ELSS sort of stands out as one of the most commonly invested ones. And overall, the takeaway is that सबको अपने liquidity risk returns और of course the final taxation rate on those investment products को देख के फैसला लेना है. Now moving ahead, Vartika, how should a salaried and how can a salaried employee optimize their salary beyond this section 80C? जो there's a lack of knowledge on that part as well. जैसे आपने कहा, आपके पास एक tax planning optimizer tool है, and beyond 80C, what are the other ways? We also have things like expenses, reimbursements that can be claimed as tax deduction. So if you can take us through some of that. Beyond 80C, what are the options available? शिवानी, इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि टैक्सेशन और टैक्स सेविंग के अंदर केवल फंडामेंटली 3 वेज होते हैं जिसमें हम टैक्स सेविंग कर सकते हैं। वो टैक्स सेविंग करने के जो 3 तरीके हैं, उसमें फर्स्ट इज यू मेक टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स। जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हमने अभी बात करी जस्ट इससे पहले, या फिर आपकी कोई एक्सपेंसेस आप ऑलरेडी कर रहे हो जो कि टैक्सेशन में आपको एग्जेम्पशन दे रहे हैं, तो आप वो क्लेम करिए। तीसरा है कि आपकी जो इनकम आपको आ रही है, आप इनकम ही ऐसे लीजिए कि उसमें टैक्सेबल पार्ट कम से कम रहे, जिसको लोग बोलते हैं, सैलरीड एम्प्लॉइज बोलते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ योर सैलरी टू टेक एडवांटेज ऑफ टैक्सेशन। अभी हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स की तो बात कर ली। अदर देन इन्वेस्टमेंट्स, जैसे सैलरीड एम्प्लॉइज की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो सीटीसी में प्रोविजंस काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा, एक बेसिक पे होता है, एक उसमें डीए होता है, एचआरए, एलटीए, फूड कूपन्स, ऐसे इस तरीके से हमने कुछ ना कुछ ऐसे अलाउंसेस सुने हैं, कुछ ना कुछ ऐसे पर्क्यूज सुने हैं। सैलरी एम्प्लॉय को जब भी सैलरी रीस्ट्रक्चर करें, तो वो इस तरीके से करें कि सारे अलाउंसेस का जो प्रपोर्शन है, वो प्रपोर्शन बहुत ही ऑप्टिमल हो और साथ में वो प्रैक्टिकल भी हो। ऐसा नहीं है कि अगर मेरी सैलरी 1 लाख रुपीज अ मंथ है, तो उसके अंदर मैं मैक्सिमम एचआरए 20 to 30% ही कर सकती हूँ मेरे कंपोनेंट में, क्योंकि अगर वो मैंने 40% कर दिया एचआरए बेनिफिट के लिए, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपफ्रंट लगेगा कि ये प्रैक्टिकली नहीं है। तो एक सैलरीड एम्प्लॉय को सबसे पहले तो जो पॉपुलर कंपोनेंट्स हैं, एचआरए हुआ, एलटीए हुआ, फूड कूपन्स हुए, और भी कई अलाउंसेस हैं छोटे छोटे जो लोगों को नहीं पता है, जैसे कि बुक एंड पीरियोडिकल अलाउंस। जैसे अगर आपका जॉब आपको रिक्वायर करता है कि आप खूब रिसर्च करिए, खूब जर्नल्स पढ़िए, तो आप ये एक अलाउंस अपने एम्प्लॉयर को बोल के डलवा सकते हैं। अगर आप कोई मार्केटिंग जॉब में है और आपको एक सर्टेन तरीके से ड्रेसअप होना पड़ता है रोज, तो आप एक यूनिफॉर्म अलाउंस करा सकते हैं अपनी सैलरी के अंदर। और काफी इसके अंदर अलाउंसेस की लिस्ट है जो आप अपने एज अ सैलरी एम्प्लॉय डलवा सकते हैं अपने सीटीसी कंपोनेंट में। बट वी अंडरस्टैंड एज एन इंडिविजुअल, ना ये अवेयरनेस होती है लोगों में, ना उनको पता होता है कि कितना क्या करें। तो हमने जो हमारा टैक्स प्लानिंग ऑप्टिमाइजर बनाया है, उसके अंदर हम आपको एक ऑप्टिमल मिक्स बता देते हैं
कि अगर आपकी सैलरी से 12 लाख पर एनम है तो उसके अंदर कितना कंपोनेंट कितना किसका होना चाहिए, ये हमने आपको एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसमें आपको सबसे पहले आप अपना एग्जिस्टिंग भी डाल सकते हैं कि आपका एग्जिस्टिंग ब्रेकअप क्या है, और जो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका एक आइडियल ब्रेकअप है वो हम आपको शो कर देंगे अलॉन्ग विद कि इससे आपकी टैक्स सेविंग कितनी हो रही है। So I suggest all the salaried people, please use our tax planning optimizer. It will help you save your taxes legally. बिल्कुल वर्तिका, जैसे आपने कहा देयर आर लॉट ऑफ वेज टू स्ट्रक्चर रीस्ट्रक्चर योर सैलरी टू सेव द मैक्सिमम टैक्स। और अगर आप ये अपने आप नहीं कर पाओगे तो देयर आर लॉट्स ऑफ टूल्स आउट देयर, द टैक्स प्लानिंग ऑप्टिमाइजर टूल फ्रॉम टैक्स टू विन being one of them, and they've also announced a coupon code for a 50% discount by the code save tax 50. So all you have to do is log into the tax to win website or download the Fisdom app and put in this coupon code save tax 50. We will share the code and the link in the description of this video, so of course you can go and explore that tool and try it out for the current January, February, March period, which is of course now the crunch period. If you haven't yet planned your taxes and done your investments, do give that a try. और वर्तिका, जैसे आपने हाईलाइट किया, there are lots of these expenses, reimbursements that you can claim, donations, leave, travel allowance, mobile bills, इतने सारे options भी होते हैं. Let's also talk about some of the lesser known ones, जैसे कि deductions on electric vehicles जो आजकल बहुत popular हो रही है. There's a lot of debate and discussion around owning electric vehicles, shifting focus there, disabled family members. तो इन दोनों चीजें and the sections under which they fall under, some of them if you can highlight for us. Yes, शिवानी, यू राइट। अभी गवर्नमेंट का फोकस है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट करने का। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे उन लोग ने एक डिडक्शन दिया है, सेक्शन 80EE-B. Section 80EE-B, it talks about deduction in respect of purchase of electronic vehicle. Now, what does this section say? This section says that any individual taxpayer, अगर आप कोई टैक्स पेयर हैं और आपने कोई लोन लिया है टू परचेज एन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, तो उसमें जो इंटरेस्ट आपका आएगा उसका आपको एक डिडक्शन मिलता है। अब ये कैसे डिफरेंस आएगा आपके, अगर आप एक नॉन ईवी खरीदोगे और उस पर आप अगर लोन लोगे, आपका लोन 9% से आपने लिया फॉर एग्जाम्पल, तो वही लोन अगर आपने एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे लिया तो आपको उसमें एक टैक्स डिडक्शन मिलता है। मतलब 9 का आपका इफेक्टिव रेट 9 माइनस 30%, इफेक्टिवली आपका 5-6% ही इंटरेस्ट लगता है फिर उसके ऊपर। सो ये सेक्शन 80EE-B है एंड बहुत सारे लोगों को अभी तक इस सेक्शन के बारे में पता भी नहीं है। इसके अलावा काफी सारे सेक्शंस और हैं जो कि लोगों को पॉपुलरली नहीं पता होते हैं, जैसे कि अगर जो फर्स्ट टाइम ये जो होम लोन लेते हैं, जो पहला घर खरीदते हैं, उनके लिए एक एडिशनल डिडक्शन दे रखा है गवर्नमेंट ने, जिसको बोलते हैं सेक्शन 80EE-A. इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी फर्स्ट टाइम होम बायर है इंडिया के अंदर और उसने कोई घर खरीदा है जिसकी स्टैंप वैल्यू 45 लाख रुपीस तक है और उसने कोई भी लोन लिया है बिटवीन 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2022, तो उसको जो इंटरेस्ट उस लोन के ऊपर देना होता है उस पर एडिशनल ₹1.5 लाख की छूट दी है गवर्नमेंट ने। तो सेकेंड लेस पॉपुलर वन इज द एडिशनल डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन। अब आपने बात की डिसेबिलिटी की बात करें और मेडिकल एक्सपेंडिचर की बात करें तो हमारा टैक्स लॉ उसके अंदर 4 डिडक्शंस देता है, जो लोगों को केवल अभी तक एक ही डिडक्शन पता है जिसको बोलते हैं सेक्शन 80D। सेक्शन 80D में अभी तक जो कस्टमर्स को पता है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि लोगों को ये पता है अगर कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करते हैं देन दे कैन क्लेम 80D डिडक्शन। हाउएवर, देयर इज वन मोर क्लॉज इन दिस व्हिच सेज दैट इफ यू आर अ सीनियर सिटीजन and you've not purchased any health insurance policy, but still senior citizen है, medical expenditure तो होएगा ही, government also understands this, तो इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने 50,000 रुपीज की छूट दी है ऐसे लोगों को जो सीनियर सिटीजन है, जिनका मेडिकल एक्सपेंडिचर हो रहा है और जिन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है। इसके अलावा हमें इनकम टैक्स के अंदर 3 डिडक्शंस और हैं अब डिसेबिलिटी से रिलेटेड, सेक्शन 80DD,
सेक्शन 80 DDB और सेक्शन 80U। अब ये सेक्शंस क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि उन्होंने कुछ स्पेसिफाइड डिजीजेस बताई हैं, जैसे कि कैंसर है, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हैं। ये इस तरीके की डिजीजेस अगर आपको है या फिर आपके कोई डिपेंडेंट को है और उनके लिए आप कुछ ना कुछ मेडिकल एक्सपेंडिचर करेंगे, तो उसके अंदर आपको एक एग्जेम्पशन दी गई है। और ये एग्जेम्पशन वेरी करती है 75,000 रुपीज से लेके 1,25,000 रुपीज तक। अब ये जो डिफ्रेंसिएशन है, ये डिफ्रेंसिएशन है ऑन द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। तो इस तरीके से इनकम टैक्स में काफी सारे प्रोविजंस हैं, काफी सारे सबसेक्शन एंड क्लॉजेस हैं जो एक इंडिविजुअल को एडवांटेजेस देते हैं टैक्स सेव करने के। पर ये सारे डिडक्शंस और सेक्शंस किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। हमारा टैक्स प्लानिंग ऑप्टिमाइजर में आपको ये पूरी लिस्ट मिलेगी और आपके ऊपर जो एप्लीकेबल है आपको हमारा टूल ऑटोमेटिकली बताएगा, ताकि आप अपना टैक्स सेव कर सकें। बिल्कुल वर्तिका, इंटरेस्टिंग टू नोट कि इतने सारे एक्चुअली ऑप्शंस अवेलेबल है लोगों को, लेकिन यू नो दे हैव वेरी लेस और लैक ऑफ नॉलेज। एंड द गुड थिंग इज ऑफ कोर्स दैट इन टुडेज डे एंड एज देयर आर लॉट्स ऑफ टूल्स आउट देयर टू हेल्प यू रियली optimize your taxes and make it so much easier. So when it is so much easier, then why not really, you know, explore those opportunities and take a look at some of those. तो हमने अब तक वर्तिका, we spoke about, you know, the popular ATC जिसका लिमिट 1.5 है, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो है ही अबाउट अप टू 50,000 रुपीज। वी स्पोक अबाउट एक्सपेंसेस एंड रियम्बर्समेंट्स, लेकिन देयर इज आल्सो दिस अदर whole aspect of taxation, and that is of course on equity investments जो हमने already investment किया है और जिसपे tax लगता है at the time of, you know, disinvesting or getting a profit from there. तो उसपे how can we save taxes? So let's focus on equity investments. How can someone really lower their जो capital gains tax होता है उसको lower करने के लिए हमने काफी सुना है tax harvesting at the time of booking losses. तो ये कैसे किया जाता है और ये advisable है कि नहीं? If you can take us through how does this work? शिवानी, आजकल एक बहुत पॉपुलर टर्म है जिसको आप बोल रहे हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। अब ये टर्म होता क्या है? इसके अंदर ऐसा होता है, अगर आपका एक पोर्टफोलियो है जिसमें सपोज मेरे पास दो स्टॉक्स है, स्टॉक ए और एक स्टॉक बी। अब स्टॉक ए के अंदर मुझे 1,00,000 रुपए का गेन हो रहा है। अब 1,00,000 रुपए का मेरे को गेन हो रहा है, अगर मैं मानूं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो मेरे पे 15% टैक्स लग जाएगा, मतलब 15,000 रुपए। अब वही मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक बी है, पर उसमें मुझे 1,00,000 रुपए का लॉस हो रहा है। तो अब मैं क्या करूंगी इस सिचुएशन का एडवांटेज लेने के लिए, क्योंकि एक तरफ तो लॉस है और एक तरफ मेरा प्रॉफिट है। बट अभी मेरे को ऐसा चाहिए कि मेरे को स्टॉक बी में लॉस तो है, बट मुझे पता है कि 3-4-5 साल में मेरे को ये स्टॉक भी अच्छा रिटर्न दे देगा। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं स्टॉक बी को भी बेच देती हूँ। तो मेरा क्या होता है, जो स्टॉक के अंदर प्रॉफिट था 1,00,000 रुपए, वो मेरा लॉस से सेट ऑफ हो जाता है। तो अब मेरा टेक्निकली टैक्स लायबिलिटी 0 हो गया। और जैसे ही मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, मैं वैसे ही उस स्टॉक को, स्टॉक बी जो था, जो मेरे को लॉन्ग टर्म होल्ड करना था, मैं उसको फिर से खरीद लेती हूँ। तो इससे मैंने अपना इमीडिएट टैक्सेशन का एडवांटेज ले लिया और साथ में मेरा जो भी फ्यूचर में गेन होने वाला था स्टॉक बी पे, मैंने उसको भी रिड्यूस कर दिया। इसको बोलते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। अब ये एक टेक्निक है जो कि डबल एज्ड स्वॉर्ड है, कि एक तरफ तो आपको टैक्सेशन हेल्प करती है रिड्यूस करने में, पर दूसरी तरफ ये थोड़ा सा एक रिस्की प्रोपोजिशन है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सो आई वुड एडवाइस कि जब भी इस तरीके का कुछ टैक्स पेयर्स करने का सोचें तो जरूर टैक्स एक्सपर्ट से कंसल्ट करें और उसके बाद ही एक्शन लें इस पे। बिल्कुल, you know, this is something of course that can be used by active equity investors, but of course, like Vartika mentioned, best to consult your CA and tax saving expert before you actually, you know, get your hands into this. दूसरा चीज है Vartika, when it comes to investments and taxation, जो हम बोलते हैं indexation benefit to save a long term capital gains tax, and this has something to do with, you know, the rising inflation trajectory, to look at it from an overall point of view. So what are the scenarios where you know, it would be ideal or beneficial to avail of this, where you can sort of recalibrate your investment? So इंडेक्सेशन बेनिफिट का मैं अगर एक लेमन की टर्म में बोलूं तो आज से 10 साल पहले अगर मैंने कोई घर खरीदा है सपोज 100 रुपीज का, तो
तो आज मैं जब लेने जाऊंगी तो वो मुझे 100 रुपीज का नहीं पड़ेगा, बट वो सेम घर में अगर बेचने जाऊंगी तो वो सपोज मेरा 200 का भी बिक सकता है। तो अभी गवर्नमेंट को ये चीज पता, और गवर्नमेंट को ये पता है कि सेल्स माइनस परचेज के ऊपर उनको टैक्स लेना है। तो आइडियली तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 200 रुपये जो सेल्स हो रही है माइनस 100 रुपीज जिसमें परचेज है, उसमें 100 के ऊपर मुझसे टैक्स लेगी, जो कि जस्टिफाइड नहीं है। क्योंकि वो चीज की 100 रुपीज में तो मैंने 10 साल पहले खरीदा था, आज मैं अगर खरीदने जाऊंगी तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट ये चीज समझती है, इसलिए वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट देती है। अब सपोज मेरा 100 रुपए का घर है, मैं उस पे इंडेक्सेशन जो हमें फॉर्मूला दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, वो अप्लाई करती हूँ, तो वो मेरा पड़ता है 120 रुपए का। तो 200 मेरी सेल प्राइस माइनस 120, जिसको बोलते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट। अब मेरा 80 रुपीज के ऊपर मैं टैक्स गवर्नमेंट को दूंगी, तो इसको बोलते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट। और ये पॉपुलरली सारे एसेट्स के अंदर हम लोग यूज करते हैं, प्रोवाइडेड वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली एसेट्स हो, मतलब जिसमें कुछ भी लॉन्ग टर्म हो, विच इज होल्डिंग पीरियड जैसे स्टॉक्स और शेयर्स में मोर देन 12 मंथ्स मानते हैं, और बाकी कुछ एसेट्स के अंदर इसको 24 मंथ्स मानते हैं, और कुछ में इसको 36 मंथ्स मानते हैं। आप तभी इंडेक्सेशन बेनिफिट ले सकते हो जब आपका होल्डिंग पीरियड 12 मंथ्स, 24 मंथ्स या 36 मंथ्स एज एप्लीकेबल अगर होता है तो। लेकिन इसमें क्या कुछ कैच है, जैसे वर्तिका अगर आप इलैबोरेट कर सकते हो कि एज द टैक्स रेट, the final tax rate on the gain that you get, is that higher if you avail indexation benefit? इंडेक्सेशन बेनिफिट इसके अंदर शिवानी, जैसे अभी अपन बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि इंडेक्सेशन बेनिफिट अगर अपन लेते हैं और नहीं लेते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। कि कई जगह जैसे आपको भी कंफ्यूजन ये इसलिए हुआ होगा कि मार्केट में कई जगह तो बोलते हैं 20% टैक्स है कोई चीज पे, कोई बोलते हैं 10% है। अगर आप इंडेक्सेशन बेनिफिट लोगे तो आपको 20% का रेट लगेगा, नहीं लोगे तो 10% का रेट लगेगा। इसके अंदर आई वुड सजेस्ट शिवानी कि हर एसेट क्लास का टैक्स प्रोविजन अलग है। आप जो भी एसेट के लिए कंसिडर कर रहे हैं बेचने का, चाहे वो आपके स्टॉक्स हो, चाहे आपका हाउस हो, या कोई और एसेट क्लास हो, आप एक बार अपने टैक्स एक्सपर्ट से कंसल्ट कर लीजिए। वो आपको एक प्रॉपर टैक्स प्लानिंग कराएंगे। एंड इनफैक्ट परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ द हाउस is the best tax planning event for an individual. So that is the best event. So you consult your expert and he will do a 360-degree planning for you. Bilkul. So, Vartika, I think we've covered, like you mentioned, 360, we've covered, mostly all the topics. Lekin, ant wala question, a few, closing comments before we wrap it up. If you can just highlight some of the, the common tax planning pitfalls to avoid, or the 5 common mistakes that people usually tend to make while tax saving. शिवानी, जो मैंने आपको बिगनिंग ऑफ द सेशन में बोला था कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे वेट टिल द लास्ट मिनट टू मेक द टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स। तो सबसे बड़ा जो पिटफॉल हमने ऑब्जर्व किया है कि कस्टमर्स एंड अप चूजिंग द रॉन्ग टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले तो आप उस चीज को अवॉइड करिए, एक प्रॉपर सारे इंस्ट्रूमेंट्स को इवेल्युएट करिए और अपने फाइनेंशियल गोल के साथ में उसको सिंकअप करिए, उसको कोऑर्डिनेट करिए, और फिर आप टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स करिए। पहला चीज तो ये। दूसरी चीज, कई बार लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि टैक्स रेजिम कौन सी चूज करें, ओल्ड करें, न्यू करें। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि न्यू टैक्स रेजिम भी चूज करते हैं और साथ में टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट्स इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको गेन्स करने हैं या उनको आगे रिटर्न्स चाहिए, वो इसलिए करते हैं ताकि उनका टैक्स रिड्यूस हो। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स हमने देखा है कि पॉपुलरली लोग करते हैं। थर्ड इज, जब भी वो टैक्स प्लानिंग करते हैं वो केवल खुद के लिए करते हैं, जबकि हमारे इनकम टैक्स लॉ इस तरीके से डिजाइंड है कि आपकी फैमिली भी आपको टैक्स सेविंग में हेल्प कर सकती है। तो इसलिए आप जब भी टैक्स प्लानिंग करें तो आप पूरा अपना कंसिडर करें कि आपका क्या सिचुएशन है, और फिर आप अपनी टैक्स प्लानिंग को लेके करिए। चौथा ये है कि हम कई बार देखते हैं लोग टैक्स प्लानिंग करते ही नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर इन एडिशन टू सैलरी उनके कई सारे गेन्स हो जाते हैं। कभी कोई स्टॉक से गेन हो गया बड़ा, कभी कोई घर का गेन हो गया, घर बेच दिया उन्होंने, या कोई और एसेट बेच दिया, गोल्ड बेच दिया, उनके पास पड़ा था। तो इससे क्या होता है कि एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आ जाती है, और जब एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आती है तो आपको एडवांस टैक्स देना बहुत जरूरी है। अदरवाइज इनकम टैक्स उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाता है, फिर पेनल्टीज लगाता है, और बाद में आपको नोटिस भी भेज सकता है।
इसलिए एक वाइज डिसीजन हमेशा ये रहेगा कि आप टैक्स प्लानिंग को कॉशियसली करें, बिगनिंग ऑफ द ईयर करें, 360 डिग्री करें, एक टैक्स एक्सपर्ट को कंसल्ट करें अगर आपका कोई कैपिटल गेन हो रहा है साल के अंदर या कैपिटल लॉस हो रहा है, और फिर आप ईयर एंड पे, अगर आपको इन्वेस्टमेंट ईयर एंड पे करना है कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से इवैल्यूएट करिए और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए रादर देन अ रश डिसीजन। और जो फिफ्थ पॉइंट आपने मेरे को बोला कि फिफ्थ सबसे बड़ा ब्लंडर लोग क्या करते हैं कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट जब वो लेते हैं तो वो ये नहीं देखते कि उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट बेनिफिशियल है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना रश में होते हैं। और एक बार आपने गलत इंश्योरेंस का प्रोडक्ट ले लिया तो आपको ईयर ऑन ईयर उसके ऊपर प्रीमियम देना है, और ये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इसलिए आप बहुत कॉशियस रहें और अपनी टैक्स प्लानिंग बहुत ध्यान से करें। Of course, Vartika, to sum it up, tax planning is no joke. So, take it as seriously as tax saving, planning and investments really sounds. But the good news is that, because of so many websites, so many tools right now, it has become so much easier in today's day and age. Again, I want to give a call out to the coupon code that we are offering to all our viewers today. Save tax 50, जो आप use कर सकते हो. You can log into the Tax to Win website or download the Fisdom app to avail of it, where we have Tax to Win integrated, and you can make use of the tax planning optimizer tool to help you plan your taxes much better. The next step, Vartika, जो टैक्स प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट के बाद हम करते हैं इज सबमिटिंग इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स टू आवर रिस्पेक्टिव कंपनीज. सो एज एन एम्प्लॉई, व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स दैट शुड बी सबमिटेड, एंड अगर ये डेडलाइन मिस हो गया तो विल आई नॉट गेट द बेनिफिट? हाउ डू यू अप्लाई फॉर अ टैक्स रिबेट लेटर इफ एट ऑल? क्या प्रोसेस होता है एज द नेक्स्ट स्टेप? तो शिवानी, टैक्सेशन का एक बहुत सिंपल रूल है कि आप जो भी टैक्स सेविंग रिलेटेड एक्सपेंडिचर करें या आप इन्वेस्टमेंट करें, आप हर चीज का एक रेसिप्ट अपने पास रखना शुरू कर दीजिए. ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है और ये थंब रूल है कि आपको क्या क्या अपने पास में रखना चाहिए फ्रॉम अ टैक्स प्रूफ सबमिशन पॉइंट ऑफ व्यू. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी में एचआरए कंपोनेंट है और आप उसको क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास रेंट रिसिप्ट्स होनी चाहिए जो आपको आपके एम्प्लॉयर को देनी है. अगर आप कोई भी डोनेशन करते हैं उसकी डोनेशन रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए. आप कोई मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हैं उसकी आप रिसिप्ट रखिए, हेल्थ इंश्योरेंस की रखिए. आप जो भी एक्सपेंडिचर, जैसे आपने अगर अपने बच्चों का ट्यूशन फीस क्लेम किया है तो उनका ट्यूशन फी रिसिप्ट रखिए. मतलब आप जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिससे आप अपनी टैक्स सेविंग कर रहे हैं वो आपको अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करना होगा, क्योंकि अदरवाइज उनको पता कैसे चलेगा कि आपने ये पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट और एक एक्सपेंस किया है. बट lot of times it happens that we missed those proof submission deadlines. ये बहुत ही common scenario है क्योंकि we have the habit of putting everything on the last minute और कई बार हम documents इकट्ठे नहीं कर पाते. तो need not worry, आप जब अपना रिटर्न फाइल करें उस टाइम पे भी आप अपने कई सारे अलाउंसेस, कई सारे एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स आप क्लेम कर सकते हैं जो आप अपने एम्प्लॉयर को बताना भूल गए थे. बट as a tax expert, my advice is कि you declare everything to your employer, because अभी क्या होता है, आप जो भी डिक्लेयर करते हो उसके बेसिस पे आपका एम्प्लॉयर गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है आपकी इनकम्स को, आपके एक्सपेंसेस को और आपका टैक्स कैलकुलेशन को. और आप जब रिटर्न भरते हैं तो आप गवर्नमेंट को डिक्लेयर करते हैं सेम चीजें. तो गवर्नमेंट के अकाउंट्स के अंदर कई बार मिसमैच हो जाता है क्योंकि आपने उस टाइम तो वो एक्सपेंडिचर बताया नहीं एम्प्लॉयर को, पर आप रिटर्न के टाइम पे आप क्लेम कर लेते हैं. तो कई बार इनकम टैक्स पर आपसे क्लैरिफिकेशन मांगता है, तो वो क्लैरिफिकेशन के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, बट इट्स जस्ट अ लॉन्ग प्रोसेस, इट जस्ट कॉजेज यू इनकन्वीनियंस. सो इट्स ऑलवेज एडवाइज्ड कि you declare everything to your employer, whatever you're planning to do from a tax saving point of view. बिल्कुल, the earlier the better, of course, and to avoid the inconvenience of directly dealing with the income tax department, it is of course advised to keep all the proofs ready and deal directly with your HR and make those sort of declarations up front there. तो Vartika, next steps क्या होते हैं? Because now once we go into the next financial year, then we have the ITR filing period that starts off in June, July. How exactly does that process go through? So after submitting your proofs with your employer, usually it is at the time of January or February, and March is when your financial year ends. And as soon as your financial year ends, you need to file your income tax return
to the income tax department, and the deadline for the same is 31st of July. So you can file your return anytime between April to July, but after filing your income tax return, your job is not done. You have one last step, which is called e-verification. So you also need to e-verify your income tax return after filing it. Now there's an amendment. Lot of people still think कि 120 दिन के अंदर हम e-verify कर लेते हैं, but इस बार amendment आ गया और now this date is reduced to 30 days. अगर आप उसमें e-verify नहीं करते तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न इनवैलिड होती है, मतलब आपने कुछ भरा ही नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आईज में इस तरीके का मैसेज जाता है. सो इट्स ऑलवेज बेटर, plan your taxes, save your taxes, file your taxes, and then verify your taxes also, tax return also. बिल्कुल. और जाने से पहले वर्तिका, can't help but ask this question, जो one of the biggest events अभी anticipated है market के लिए, economy के लिए, is the financial budget जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन अनाउंस करेगी February 1st को. और कॉमन मैन का यूजुअली वही मांग है कि टैक्स स्लैब और टैक्स रेट को कम करे. दिस ऑफ कोर्स इज अ टर्निंग पॉइंट बजट फॉर द इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो, कि मोदी सरकार का लास्ट बजट है बिफोर हिज सेकंड टर्म एंड्स. बट फ्रॉम अ टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एन इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्या मांग है पॉपुलरली आउट देयर इन द स्ट्रीट? व्हाट आर यू expecting as a key player in this industry as well? So शिवानी, हम लोग को इस बार एज एन एक्सपर्ट्स हमारे जैसे आपने मेंशन किया कि गवर्नमेंट का ये लास्ट बजट है बिफोर द इलेक्शंस, और ये बजट फोकस होने वाला है एक स्मॉल टैक्स पेयर्स के ऊपर, एक मिडिल इनकम जो अर्न करते हैं सैलरीड लोग, उनके ऊपर. तो उनको इम्प्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ETC की लिमिट बढ़ा सकती है. अभी जो ETC के बारे में हम बात कर रहे थे उसमें आपने देखा हो तो ₹1,50,000 तक का ही प्रोविजन है, जो कि एक नॉर्मली हम कोई भी एक्सपेंस करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1.5 लाख तो ऐसे ही हो जाता है उसके अंदर, तो बहुत ज्यादा टैक्स सेविंग का स्कोप नहीं रहता. तो हम एक्सपेक्ट करें कि ये ETC का लिमिट बढ़ सकता है. सेकेंडली, देयर इज अ रिबेट विच इज अंडर सेक्शन 87A, मतलब 5 लाख तक की इनकम वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता. तो गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इंक्रीज दिस रिबेट, बिकॉज गवर्नमेंट का भी फोकस हो गया है मोर एंड मोर लोगों को टैक्स फाइलिंग नेट के अंदर लेके आना. जैसे आपने सुना भी होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफी जगह से डेटा इंटीग्रेशन कर रहा है आधार पैन लिंक करके. तो जब इतने लोग टैक्स फाइलिंग नेट में आएंगे तो गवर्नमेंट को टैक्सेशन भी रिड्यूस करना पड़ेगा. थर्ड, जो मैंने आपको बताया कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कोई भी बेनिफिशियल अलाउंस या डिडक्शन नहीं मिलता, तो इस बार काफी बातचीत चल रही है कि गवर्नमेंट को न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी कुछ अलाउंसेस देने की बात कर रही है. तो हम उसके अंदर भी कुछ अमेंडमेंट देखना एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ओवरऑल अगर हम लोग एक्सपेक्टेशन की बात करें तो वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ सैलरीड एम्प्लॉय फ्रेंडली बजट, क्योंकि 2014-15 के बाद में जो एग्जेम्पशन में इंक्रीमेंट हुआ था उसके बाद में अभी तक कुछ भी बड़ा हमें एग्जेम्पशन नहीं मिला एज अ सैलरीड एम्प्लॉय. सो होप्स आर हाई फ्रॉम दिस बजट एंड लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट फॉर ऑल ऑफ अस. Definitely, Vartika, fingers crossed. Hopefully it would be some sort of a populist budget to that extent, given that the election year is also anticipated. Thank you so much. बहुत शुक्रिया Vartika आपके time के लिए. We've had a wholesome discussion, and again to the audience, do make use of the special discount coupon code that we're giving to you, Save Tax 50. That's the code to use. Log in to the Fisdom app, download the Fisdom app, or also log into the Tax2Win website to get a discount on the tax planning optimizer tool. And of course, thanks so much for watching the session. Hope you had a lot of great takeaways out there. And of course, the key advice is the earlier you start your tax planning, saving and investment, the more knowledgeable you are of it, the greater benefit you will get, the more disposable income you will have in hand. Vartika, thank you so much for your time. Goodbye to our audience. Thank you.